Hello students, how are you all? Welcome to my class. I am Mrs. Radhika Sonwalkar and this year I am going to teach you business studies. Last year I was not there, but this year I will teach you business studies. So how are you all enjoying your lockdown time? Some must be enjoying and some are getting bored, है ना? So it's okay. Now as you all are in 12th class, you must be worried about your syllabus, how it will complete for the board exam, how will you prepare for your board exam. So don't worry about it. We are uploading videos, or because of this online class you will be able to complete your syllabus on time and you will score good marks in 12th class. So be ready, be at home, be safe and start your studying for the exams. So this year, first of all, your first chapter of business studies is nature and significance of management. Last year what you have learned, in last year your topic was what is business. आप लोगों ने क्या पढ़ा था? What is business, trade, commerce, types of business, forms of business organization, its advantages, its disadvantages, how it is formed, what is the procedure, what is the documentation, that different types of retailers, wholesaler, etc etc. तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के बिजनेस हैं, हम किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा, और इनको फॉर्म कैसे करना है. अब आफ्टर सिलेक्टिंग वन ऑफ द टाइप अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ बिजनेस. बट व्हाट इज द मेन की टू सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस? which is the key? What is the key to success in the business? That is the only one thing, that is management. Management is the key to success in each and every form of business. If management is not there, आपका चलता हुआ business भी बंद हो सकता है. What are the three main objective of any type of business? आप लोगों ने लास्ट ईयर बिजनेस में पढ़ा हुआ है. फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज ग्रोथ. जब आपका बिजनेस चलने लगता है उसके बाद आप कोशिश करते हो कि प्रॉफिट अर्न करो. बिफोर दैट यू आर इन द कंडीशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, आफ्टर अर्निंग सर्टन प्रॉफिट, you will reinvest that profit to grow your business, to expand your business. तो हमारा एम यही होता है कि पहले हम बिजनेस शुरू करें, उसमें सर्वाइव करें, प्रॉफिट अर्न करें और फिर उसके बाद हम उसको एक्सपेंड करें. एंड हाउ इट विल बी पॉसिबल? द ओनली वन की इज दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो आप किसी भी बिजनेस में सक्सेस करेंगे, अदरवाइज यू विल फेल इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सो बिफोर गोइंग to next topics, कि what we should know what is management. So before going to that bookish topic, I want to give one real life example, which is the latest topic and the hot topic nowadays all over the world. Yes, that is coronavirus or lockdown. So I am not going to tell you कि what is coronavirus, आपको कोरोना वायरस से कैसे प्रिवेंट करना है, what are the different method, मतलब क्या क्या है उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना है. बस just I want to ask what you have learned from this coronavirus situation, lockdown situation. See, we all are at home, shops are not opening, we are having very limited resources at our home. तो हम उसी में काम चला रहे हैं. What we are doing? We are managing our groceries, we are managing our time, we are managing our home, we are managing work at home, we are managing work from home, and some are managing their social responsibilities also. So whatever the condition outside the world, but each and every one of us have learned to manage our resources. जितने भी हमारे घर में resources हैं, हमने उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया है और अब उसी को अच्छी तरीके से यूज़ करके अपने घर को चला रहे हैं. बिफोर द शॉप्स आर ओपन, अब तो ठीक है शॉप्स ओपन हो रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए ओपन हो रहे हैं, तो वी आर हैविंग सम ऑप्शंस. बट उसके पहले क्या था, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे. तो वी ऑल आर हैविंग दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट स्किल इन अवर सेल्फ, एंड दोज हु आर हैविंग दैट स्किल एंड दोज हु नो हाउ टू यूज दैट स्किल, दे आर गुड मैनेजर्स. तो नाउ कम टू द वन ऑफ द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को हम तीन वर्ड में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज मैनेज, मैन एंड टैक्टफुली. मैनेज, मैन, टैक्टफुली मीन्स अगर हमने मैन को टैक्टफुली हैंडल कर लिया तो हम आराम से मैनेजमेंट कर सकते हैं. वी कैन मैनेज मैन टैक्टफुली. वाई ओनली मैन इज हियर? बिकॉज देर आर सो मैनी रिसोर्सेज वी आर यूजिंग इन बिजनेस. वाई ओनली मैन इज हियर? because man is the
asset of the company, and if you are utilizing that particular asset properly, तो वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बाकी सारे रिसोर्सेज यूज़ करेगा. मैन और ह्यूमन रिसोर्स इज गोइंग टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज लाइक मनी, कैपिटल, योर एसेट्स, योर लैंड, योर बिल्डिंग, एक्सेट्रा. तो इफ़ यू आर एबल टू मैनेज द मैन, the particular capital, that is human capital. In 11th you are having in 12th class in economic development you are having one topic, that is human capital formation. तो human को हमने capital बोला है. Why capital? Capital क्या होती है? Capital is the initial amount which we are investing in a business to earn profit. तो here we are investing in man to get benefit of it. तो इसीलिए हमने man को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. और इफ़ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, द सेकंड वे इज देयर आर 5 M ऑफ मैनेजमेंट. 5 M's. फर्स्ट वन, मैन, मशीन, मनी, मेथड्स एंड मटेरियल. आप कभी भी मैनेज करोगे तो आपको इन्हीं 5 चीज़ों को मैनेज करना है किसी भी बिजनेस में. इफ़ यू आर एबल टू मैनेज दिस 5 थिंग्स, यू विल बी एबल टू मैनेज योर होल बिजनेस. So these are the 5 M. You can note it down in your copy. You can pause the video, note it down because you will not get it in your book. Okay. Now next, this is the one of the best definition of management. That is, management is an art of getting things done through others with the aim of achieving goal effectively and efficiently. Management is an art जिसमें आप किसी से काम करवाते हैं. See, it is very easy. Really, it is very easy to do work ourselves. But it is very hard to get it done from others. वो आपके हिसाब से काम हर बार नहीं करेगा. एंड इफ़ यू वांट कि वो आपके हिसाब से काम करे तो उससे काम हमें करवाना आना चाहिए. हर कोई हमारे हिसाब से काम नहीं करता. तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. और वो भी कैसे, क्यों? फॉर अचीविंग अवर ऑर्गेनाइजेशन गोल. आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है. और किस तरह करना है? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. Effectively and efficiently. See, these are the 2 words, effectively and efficiently, which are very necessary. हम कोई भी काम effectively करते हैं, लेकिन अगर efficiently नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं. इन दोनों में डिफरेंस है. इट इज़ गिवन इन योर बुक. आई थिंक रेफर टू पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक. तो उसमें effectively और efficiently दिया हुआ है. effectively का मतलब, इसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने 2 लेबर रखे, दोनों को बोला कि आपको वॉल पेंट करना है. दोनों को एक एक वॉल दे दी पेंट करने के लिए. लेबर ए ने वॉल जल्दी पेंट कर ली और लेबर बी ने उसमें 2 घंटे ज़्यादा लगाए. तो जब मैंने देखा, उनका काम को मैं चेक करने गई, मैंने देखा लेबर ए ने काम जल्दी कंप्लीट कर लिया था. बट लेटर ऑन वी रियलाइज ही हैड पेंटेड रॉन्ग वॉल. जल्दी काम किया बट गलत काम किया. अब वो सही वॉल पेंट करने के लिए फिर से रिसोर्सेज यूज़ करेगा तो फिर से हमारा वेस्टेज ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स हो जाएगा. और सेकेंड वन जो था, उसने भले ही थोड़ा टाइम लिया बट उसने करेक्ट वॉल पेंट करी, एफिशिएंटली करी. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इन इफेक्टिवली वी हैव टू कंप्लीट वर्क एनी हाउ विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉस्ट. बट इन एफिशिएंटली वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम विथ दैट पर्टिकुलर कीपिंग द कॉस्ट एट मिनिमम. द वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन आई कैन गिव यू फॉर मैनेजमेंट इज only 2 words you remember: maximum utilization of resources at minimum cost. आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करो बट एट मिनिमम कॉस्ट. दैट इज़ द मेन मतलब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जो आपको सब इसमें बता देगी कि मैनेजमेंट में क्या है और उसमें हमें कम से कम कॉस्ट रखते हुए यूटिलाइज करना है. द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू अबाउट दैट टुडेज सिचुएशन, उसमें भी मैंने कहा था हमारे घर में जो रिसोर्सेज हैं वी वर यूजिंग दैट. हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ करे, कॉस्ट कम करी क्योंकि बाहर जाना ही नहीं था, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो थे हमने उसको ही मिनिमम कॉस्ट को रखते हुए यूज़ किया. तो वी ऑल आर हैविंग दैट मैनेजमेंट स्किल. हमने मैनेजमेंट को किया. नाउ दिस डेफिनेशन फोकस ऑन 3 पॉइंट्स. फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकेंड वन इज इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज एफिशिएंटली. तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. तो प्रोसेस में हम क्या करते हैं? प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? इन योर बुक इट इज़ गिवन. प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. कुछ स्टेप्स हैं जो हमें सीक्वेंशली हमें जिसको फॉलो करना है. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा. और ये प्रोसेस है तो ये एक के बाद एक फिर से रिपीट होते जाएंगे.
Our definition of management is focusing on three words, that is process, effectively and efficiently. As I have earlier told you, process का मतलब क्या होता है? Sequence of steps. There are certain sequence of steps which we have to follow for management. These steps are, listen it carefully, these steps are, और ये जो मैं आपको steps बता रही हूँ, these are the 5 chapters in your 12th class book, first part of your book, first section. That first one is planning, second one is organizing, third one is stuffing, fourth one is directing, and fifth one is controlling. Planning, organizing, stuffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और आपने बुक का अगर कंटेंट पेज देखेंगे तो ये आपके 5 चैप्टर्स हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस में हम क्या करते हैं? प्रोसेस में वी आर फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्लानिंग के बाद सेकेंड स्टेप हमारी होती है ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारी थर्ड स्टेप होती है स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। Let me give you some small point about it, small definitions. What is planning? Planning is deciding in advance what we have to done in future. हमें फ्यूचर में क्या करना है उसको हमें प्लान करना है। See, we never plan about our past, we never plan our present, we always plan for future. We can make plan for future, not for present and not for our past. Yes, but on the basis of our past experiences, जो भी हमें रिजल्ट्स मिले हो, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको बेस लेके हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। उनको बेस लो उनके। फॉर एग्जांपल 11th क्लास में आपके परसेंटेज अच्छे नहीं हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे 12th में क्या होगा। सो टेक इट एज अ बेस कि 11th में आपने नया आपने 10th तक SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी पढ़ा है। व्हेन यू टू ऑप्शन आपने कॉमर्स का लिया तो इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आपके नए थे। एम आई राइट? फर्स्ट वन इज़ दैट योर पी, फिजिकल एजुकेशन, और सबने IP लिया होगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उनको। सेकेंड वन इज़ अकाउंटेंसी, टोटली न्यू। स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म में तो हमें सोचने में लग जाता है कि इसमें करना क्या, तब तक हमारा रिजल्ट आ चुका होता है और हम फेल हो चुके होते। नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम आई एम टेलिंग। इवन एट टाइम व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, फर्स्ट टर्म के रिजल्ट के बाद समझ में आया कि हाँ इसी कोचिंग जाना पड़ेगा, ये नया सब्जेक्ट है, कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है उसके बाद आपको आया बिजनेस स्टडीज़ एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके थे बट बिजनेस भी आपका नया टॉपिक था। तो व्हाट इज़ द मेन थिंग कि ऑल सब्जेक्ट्स वर न्यू। उसके हिसाब से आपने फर्स्ट टर्म में थोड़ा कोशिश करी करने की, फाइनल में करी। देन नाउ यू आर हैविंग योर एक्सपीरियंस, यू आर गुड इन अकाउंट्स, यू आर ओके इन इकोनॉमिक्स, यू आर वेरी गुड इन पी, इंग्लिश यू कैन हैंडल। आपको BST में केस स्टडीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो यू नो योर वीकनेसेस, you know your mistakes, what you have done in past. On the basis of that you plan for your future, that is for your 12th class preparation कि आपको 12th में कैसे आगे नंबर ज़्यादा लाना है, बिकॉज 12th के जो मार्क्स है ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। तो हमने क्या किया, पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी प्लानिंग की। नाउ सपोज आई हैव अचीव 58% इन 11th क्लास। अब नए थे, आए नहीं थे इतने मेरे, बट आई एम टेलिंग कि सपोज मेरे इतने आए। अब मुझे 12th में 85 लाना है। आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट माई 58 into 85। मैंने एक लिस्ट बनाई, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस क्या थे, मुझे किस में वीकनेस थी, किस में मैंने कम मेहनत करी थी, किस में मेरी ही गलती थी, किस में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सारे चीज़ें एक्सप्लेन करके मैंने प्लानिंग करी। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, इंग्लिश में निकाल लूँगी। इकोनॉमिक्स में माइक्रो थी तो नंबर कम आए, बट इस बार माइक्रो नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारा हमने 9th और 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैक्रो में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस स्टडीज़ थ्योरी पार्ट हम निकाल लेंगे, मेन पॉइंट इज केस स्टडीज़, तो हमें उसके लिए ज़रूरत है। देन थर्ड वन इज अकाउंटेंसी। इसको सुन के आधे लोगों के होश वैसे ही उड़ जाते हैं। अकाउंट्स, दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद काउंटिंग एंड फिगर्स एंड दैट रिमेंबरिंग डेबिट क्रेडिट वॉट एवर, तो उनको अकाउंट टफ लगता है। तो मैंने प्लान बनाया कि मुझे इसी सब्जेक्ट की कोचिंग लगानी है, मुझे इसी सब्जेक्ट को खुद रेगुलर पढ़ना है, मुझे इसी सब्जेक्ट पर थोड़ा कम ध्यान देना है। एट द लास्ट टाइम मैं उस पर ध्यान दूँगी। मैंने प्लानिंग कर ली, फिर अब उसके हिसाब से मैं ऑर्गेनाइजिंग करूँगी। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग, हमें सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना है जिनकी हमें ज़रूरत है।
12th क्लास में मुझे जिन बुक्स की ज़रूरत है, मुझे ऑनलाइन मटेरियल की ज़रूरत है, मुझे जिन जिन टीचर्स की ज़रूरत है, मुझे जिन फ्रेंड्स की ज़रूरत है, मैंने सबको ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, स्टाफिंग, अब यहाँ तो स्टाफिंग का कम मतलब नहीं है, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज अगर हमने सोचा है कि वी हैव टू गो फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस मोबाइल फ़ोन, मैंने मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन यूनिट लगाना है, मैंने इसकी सारी प्लानिंग कर ली, तो इसकी रिसोर्सेज मैंने ऑर्गेनाइज़ किए। रिसोर्सेज की मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइज़ किया, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, इन सबको मैंने जो भी मेरे एसेट्स थे उन सबको कर लिया। देन थर्ड पार्ट आता है हमारा स्टाफिंग। देन आफ्टर अरेंजिंग ऑल दिस थिंग, मुझे एक एफिशिएंट लोग चाहिए जो इस काम को मेरे साथ अच्छे से कर सके, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। मैंने उनको राइट पर्सन एट राइट जॉब को अपॉइंट किया। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज द फंक्शन विच ब्रिंग्स एक्शन। आपने मूवीज़ की शूटिंग देखी होगी या फिर आपने सुनी भी होगी। डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर बोलता है लाइट्स, कैमरा, एक्शन। जैसे ही उसने एक्शन का हीरो, हीरोइन या वॉट एवर द मेंबर दोज आर शूटिंग, वो अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार व्हेन डायरेक्टिंग फंक्शन स्टार्ट्स, कि हमने राइट पर्सन को राइट काम दे दिया, पर हमने उसको बोला ही नहीं कि काम शुरू करो, तो वो काम शुरू ही नहीं करेगा। तो हमने उसको बोला काम शुरू करो, उसने काम शुरू किया, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। एंड द लास्ट कंट्रोलिंग, इट इज़ द रियली वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर आप ये फंक्शन नहीं करेंगे तो आपका पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयरिंग योर स्टैंडर्ड्स विथ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, 11th के बाद का जो रिजल्ट आया, मैंने बहुत सोचा, बहुत कुछ प्रिपरेशन करी। अब मेरा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट में एम था कि मुझे जो मेरे 11 में 58% आते हैं, मिनिमम मुझे 70% 12th के फर्स्ट टर्म में स्कोर करने ही हैं। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं। या तो मैं रिजल्ट के दिन अपने आप को देखूं, कंट्रोलिंग करूं कि मेरे 70% आए कि नहीं आए। सपोज अब फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ जाए, मैंने अपने आप को देखा, मैंने 70 की प्लानिंग की थी, रिजल्ट में आ गया 70 की प्लानिंग की थी, 70 आ गए। तो दैट इज़ नो डिविएशन, नो डिफरेंस, जो मैंने सोचा था वो हो गया। बट ऐसा होता नहीं है। अलॉन्ग विथ प्लानिंग, अलॉन्ग विथ अदर फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन लगातार चलता है। सी, इसका एग्जाम्पल है, डेली टीचर आके आपको डांट रहा है, होमवर्क किया कि नहीं किया, ये चैप्टर लर्न किया कि नहीं किया, मेरे को टेस्ट लेना है। आप खुद को टोक रहे हो कि आज मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे, दो या 3 चैप्टर कंप्लीट करने थे, मैंने आज किए नहीं है, आज 3 की जगह 2 ही टॉपिक हुए हैं, तो कल मैं कवर करूँगा। तो ये जो आप अपने आप पे बार बार अपने आप को रीचेक कर रहे हो कि क्या प्लान किया था, कहाँ तक किया है, कितना बचा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। आई हैव थॉट ऑफ 70%, रिजल्ट के दिन मेरे 65 आ गए। हाउ मच डिफरेंस इज देयर? 5%। तो मुझे 5% का क्या करना पड़ेगा? डिविएशन को करेक्टिव एक्शन लेके करेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो मेरा फाइनल बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसमें मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि फाइनल बोर्ड का रिजल्ट मेरे लिए मायने रखता है। तो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन, हमें लगातार ध्यान देना पड़ता है। राइट विद द प्लानिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन स्टार्ट। हमने आगे हम पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग फंक्शंस गो हैंड इन हैंड। जहाँ प्लानिंग हुई वहाँ पे हमारे पास कंट्रोलिंग चलती रहती है। अगर हमारा इफ़ अब प्लान ए फेल्स, वी शुड हैव प्लान बी। अगर प्लान बी फेल हो गया तो सी, वी शुड ऑलवेज हैव अल्टरनेटिव प्लान्स, तभी हम आगे सक्सेस कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। इन फर्दर चैप्टर्स वी विल कंटिन्यू इट दैट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। आपको पूरे इसके एडवांटेजेस, प्रोसेस, सारी चीज़ें पढ़नी है, फीचर्स वगैरह। देन इफेक्टिवनेस, मैं आपको बता चुकी हूँ, कंप्लीटिंग ऑफ टास्क ऑन टाइम। It is really very important to complete your task on time, that is effectively, but it is also very important to complete your time efficiently, that is at minimum cost also, utilizing all the resources, keeping the cost at minimum. ये इसीलिए भी important है क्योंकि आपकी profit margin उसी से बढ़ेगी। तो you should always minimize your cost। आप अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है उनको यूज़ करो और उसकी कॉस्ट को हम कम से कम रख सकते हैं। तो ये तो हो गया था मीनिंग। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट यू कैन से मैनेज मैन टेक्टफुली, मैन नॉट ओनली मैन टेक्टफुली, 5 M's टेक्टफुली, दैट इज मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल एंड मैन। ये 5 चीज़ों को आपको टेक्टफुली हैंडल करना है। इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। Or the definition which I have written on the board previously, management is an art of getting things done through other with an aim
to achieve his goal at minimum efficiently and effectively. और नहीं कुछ याद हो तो ये सारी चीज़ याद रखने के बाद एक याद रखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. Okay, is it clear? Now further we will go for the characteristics point. What are the characteristics of business management? Okay students, now our next topic is characteristics of management. Here we are discussing the different characteristics of management. First one is management is goal oriented process. See, why we are doing management, why we are keeping our cost minimum, why we are planning, why we are doing directing, वाई ऑर्गेनाइजिंग. हमारे पास कोई गोल होगा, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, अचीविंग इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो जब तक हमारे पास गोल ही नहीं है तो हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो प्लानिंग वानिंग की ज़रूरत ही नहीं है. तो द एग्जाम्पल विच आई हैव टुक, तो इन दैट यू आर हैविंग वन एम कि यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन 12th क्लास. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल, वो एम को अटेंड करने के लिए हमारी सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं. So that's why it is goal oriented process. Without goal we cannot think of management. Now come to the second point, that is management is pervasive. What is the meaning of pervasive? Pervasive means present everywhere, omnipresent. जो चीज़ हर जगह पे present है. See, only management we cannot talk about it in business organization. It exists in business organization, non-profit organization, at your home, in our educational institution, in my home, in my life, in your lives. ये हर जगह प्रेजेंट है, बट इसको करने का तरीका अलग अलग होता है. मैनेजमेंट हम सब करते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में है. इट इज़ एट हायर लेवल, लोअर लेवल. मोर ऑफ मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है हायर लेवल को डिसाइड करना है, बट लोग अपने लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं. सपोज इसका क्या एग्जांपल होगा? स्कूल इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एम is to attend 100% result of 12th class students. 12th क्लास के बच्चों के लिए हमने सोचा है कि हमें 100% रिजल्ट चाहिए. हमने बहुत सारी प्लानिंग करी, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी बिकॉज वी आर लेट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, कोरोना वायरस एंड ऑल. और भी बहुत सारी तैयारी शुरू कर दी स्कूलों में, ऑर्गेनाइजेशन में. देन एट माई लेवल, टीचिंग लेवल, वी एज अ टीचर वी आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने सब्जेक्ट का 100% रिजल्ट लाना है. At my level, I am planning कि how I will improve my teaching, how I can inculcate you knowledge about business studies and to solve case studies कि आपके बिजनेस में नंबर अच्छे हैं. At your level, now you are the third level, आप प्लानिंग करोगे कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो. टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको नंबर कैसे लाने हैं. At all level we are doing management. That's why it is called as pervasive. First one is management is goal oriented, हमारे पास कोई गोल है, and second one is it is pervasive. Now come to third, management is multi-dimensional. One diagram is given in your book, that is page number 14. तो उसमें दिया हुआ है, that diagram I have used. Multi-dimensional मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, इसके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं. What things we are managing? First, we are managing work. Second, we are managing people. Third, we are managing operations. In diagram also I have given. Work manage करने के लिए हमें क्या करना है? प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है. ये हमारे 3 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के. पीपल को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू डू स्टाफिंग, देन आफ्टर स्टाफिंग वी हैव टू डायरेक्ट देम, तो वो डायरेक्टिंग करेंगे. एंड देन आफ्टरवर्ड्स ऑपरेशंस, जिसमें वो प्रोडक्शन का, हमें प्रोडक्शन का देखना है, परचेज का देखना है, सेल्स का देखना है. तो ऑल दिस वर्क इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल फंक्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. आप मैनेजमेंट को एक बार करके नहीं रख सकते. सी, इसका एग्जाम्पल आप अपने घर में देख लो. एक बार मम्मी ने आपका पूरा कमरा जमा दिया और यू योरसेल्फ आपने अपना कमरा पूरा जमा दिया. थोड़ी देर में एक बुक ढूंढते ढूंढते पूरा कमरा ख़राब कर दिया. मम्मी सुबह पूरा मैनेज करके गई थी या आपने खुद ने पूरा मैनेज किया था. अब आप क्या करोगे? अगर आपको उसको सही रखना है तो आप कंटिन्यू करोगे, फिर से वापस सारी चीज़ें जगह पर रखोगे. हो सकता है एक दिन में 5 बार आपको ये काम करना पड़े, चीज़ों को मैनेज करना पड़े. तो इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसे मैंने आपको कहा था, प्लानिंग करते हैं, साथ में कंट्रोलिंग चलते जाती है. प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग नहीं होता है, लेकिन डायरेक्टिंग, लोगों पे ध्यान रखना, काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो काम हमने दिया वो सही टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ऑल दिस, इसलिए हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस.
Now next one is management is group activity. Why management is called as group activity? हम अकेले अपने आप को मैनेज तो करेंगे नहीं. वी आर हैविंग ग्रुप ऑफ पीपल. हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ ग्रुप लोग हैं, उनके ग्रुप्स हैं, उनकी थिंकिंग लेवल अलग है, हमें उनको मैनेज करके चलना है. उन्हें हमारा प्लान बताना है, उसको हम कैसे अटेंड करने वाले हैं वो बताना है, उनको काम देना है, देन उनके ऊपर चेक रखना है. तो इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी. वी कैन नॉट डू मैनेजमेंट इन आइसोलेशन, या अकेले रह के नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मैनेजमेंट इज डायनामिक प्रोसेस. डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग. सी, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास अभी हमारे आंखों के सामने है. फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस डिटेक्ट कब हुआ था इंडिया में? दैट इज़ ऑन 31st ऑफ जनवरी, जहाँ तक मुझे याद है. 31st ऑफ जनवरी में हमारे यहाँ पे केरल में फर्स्ट कोरोना वायरस का केस पता चला था. एंड टुडे इज़ 26th ऑफ अप्रैल. स्टिल वी आर हैविंग ओनली 26 or 27,000 पेशेंट इन आवर कंट्री, आउट ऑफ विच मोर देन 6,000 आर रिकवर्ड फ्रॉम दिस डेंजरस वायरस एंड सम 1,000 के अंदर डेथ्स हैं. कुछ बहुत ज़्यादा जो लोग इसमें स्टडी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने प्रॉपर टाइम पे इस चीज़ के लिए स्टेप्स लिए हैं, प्रॉपर थिंकिंग के साथ, प्रॉपर स्टडी के साथ. मोदी जी ने, पीएम ने बहुत स्टेप्स लिए. लॉकडाउन सही टाइम पे किया. वी आर हैविंग 20 days इन हैंड. उन्होंने सही तरीके से सारी चीज़ें करी, जिसके कारण जो काउंटिंग आज लैक्स में हो सकती थी वो 26,000 पे ही है. बिकॉज इंडिया के पास इतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अगर हमारे यहाँ पे ये बीमारी अमेरिका जितने जल्दी फैलती इन नंबर्स, तो हमारे यहाँ पे इतना स्टाफ, मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, ना ही मेडिकल फैसिलिटी है. टुडे ओनली इन न्यूज़ आई रेड इन अमेरिका एवरी 48 सेकेंड वन डेथ इज़ देयर ड्यू टू कोरोना वायरस. हर 48 सेकेंड में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से मर रहा है. और हमारे यहाँ पे, जहाँ पे वर्ल्ड के मेडिकल फैसिलिटी में हमारी कंट्री का आई थिंक 102 नंबर है, 102 नंबर है. बहुत सारे अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बोलो या फेसबुक पे अपलोड्स बोलो, उसमें ये दिया था कि जिन कंट्री का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए इस पर्टिकुलर डिसीज़ को लेके. तो हमारी कंट्री तो 102 नंबर पे है. सी, रिसोर्सेज कम थे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, मेडिकल स्टाफ कम था. हमारे पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन हमारे पास क्या था? मैनेजमेंट था. हमने मैनेज किया. पहले ही लॉकडाउन कर दिया, पहले ही जनता कर्फ्यू दे दिया, पहले ही लॉकडाउन शुरू कर दिया कि कोई चीज़ इतनी फैले ही नहीं कि हमें उस पर खर्चा करना. मैनेजमेंट, ये चीज़ कहते हैं मैनेजमेंट. इसके बारे में मेरे से ज़्यादा नॉलेज आपको होगा. डेली सोशल मीडिया पे, डेली न्यूज़ में इन सब चीज़ों के बारे में इतना आ रहा है कि कोरोना वायरस को हैंडल करने वाला सबसे फर्स्ट नंबर पे जो व्यक्ति चल रहा है, उनका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी. व्हाट ही गॉट, ही इज़ ओनली हैविंग द मैनेजमेंट स्किल, माइंड. उसने कम रिसोर्सेज के होते हुए हमारे कंट्री के 130 करोड़ लोगों को कैसे इस बीमारी के बारे में समझाया. आप एक फ़ोन करो, खो अगर कोरोना वायरस से बचना है तो. आज तक कितने बार आपके कॉलर ट्यून चेंज हुए? नहीं हुए, कभी नहीं हुए. कारगिल वॉर के टाइम भी नहीं हुए थे. तो ऐसे मैनेजमेंट स्किल वाला अगर कोई पर्सन हो तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बी सक्सेस इन योर फील्ड. तो मैनेजमेंट है हर चीज़ का. कम से कम रिसोर्सेज में कुछ लोग अच्छा कर जाते हैं, और कुछ लोगों के पास हज़ारों ट्यूशन लगा दो, हज़ारों अच्छे टीचर ला दो, पर वो 50% पे अटके रहते हैं. मेन थिंग इज़ रिसोर्सेज. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट APJ अब्दुल कलाम. मैंने नाम ले लिया और आप समझ गए. आपने उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री पढ़ी होगी, बचपन में वो क्या थे. मिशन मंगल देखी होगी, उसमें उनका नाम आता है. कम से कम रिसोर्सेज में कैसे नॉलेज गेन करना, कैसे ऐसा कुछ करना कि अपने कंट्री को मैं कुछ दे सकूं, चाहे मैं रहूं ना रहूं. तो ऑल दिस इज़ मैनेजमेंट. आपको कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम कॉस्ट में कुछ अच्छा करना है. नाउ कम टू द डायनामिक. डायनामिक की बात चल रही थी कि मैनेज करने का तरीका हर चीज़ का अलग अलग होता है. कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से मैनेज करेगा, कोई प्राइवेट सोल प्रोप्राइटर अलग से करेगा. इवन आप अपने घर से अपने चाचा जी के घर या मौसी जी के घर चले जाइए, तो उनके घर का रूटीन, उनके घर का रहन सहन, उनके घर के खाने की हैबिट्स, उनके घर के रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन आपके घर से हम ज़रूरी ही अलग होगा. उनका तरीका मैनेज करने का वो है आपका. तो डायनामिक मीन्स एवर चेंजिंग,
जैसे ही सिचुएशन आती है हमें मैनेजमेंट का जो प्लान किया था उसको चेंज करना पड़ता है। आपने प्लान ABC छोड़ के हो सकता है प्लान D अपनाना पड़े। अभी ये जो पर्टिकुलर कंडीशन चल रही है, किसने सोचा था कि इतने दिन हमें घर में रहना पड़ेगा? शेयर मार्केट ठप, सारे इतना ऑयल पेट्रोलियम कंट्रीज जो इतनी रिच बनी फिरती है, जब हम गाड़ी ही नहीं चला रहे तो उनके पेट्रोलियम तो गया कहाँ से? नो यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेट्रोलियम। तो डायनामिक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम कैसे मैनेज करके चल रहे हैं? हर कंडीशन में हमें अलग तरीके से मैनेज करना है। आपको मैनेजमेंट तो आता है, लेकिन जिस कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में आपको मैनेज करना आ रहा है कि नहीं? हर चीज़ के लिए एक साइज़ नहीं होता है। जैसे हम सब लोग अलग अलग साइज़ के अलग अलग साइज़ के कपड़े पहनते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई नहीं होती है, हम कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वर्ड्स आपने एसेट्स में सुना होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल? इंटेंजिबल मीन्स द थिंग विच वी कैन नॉट फेस, सी एंड विच वी कैन नॉट टच। हम छू नहीं सकते और उसे देख नहीं सकते, बट उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को आप देख सकते हो, और जहाँ पे ये सब नहीं होता आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सी सिटीज़ अभी ऐसी है जो लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो कर रही हैं। सड़क पे आपको दिन भर में एक भी इंसान नहीं दिखेगा, और दमों का नाम फर्स्ट नंबर पे था जहाँ 178 केसेस बने थे। लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे, कौन निकल रहा है नहीं निकल रहा है उनको देखने के लिए लोग निकल रहे। 178 लोगों के ऊपर शायद केस हुआ था। तो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे लोग उसको, हम खुद को ही मैनेज नहीं कर पा रहे कि हम खुद को अपने आप को घर रखें। तो दैट इज़ इंटेंजिबल थिंग। हम प्रॉफिट अर्निंग से, लोगों के बिहेवियर से उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर है कि नहीं है। ये लॉकडाउन चल रहा है तो रात को 3 बजे सो रहे हैं और दोपहर में 3 बजे उठ रहे हैं। अब राधिका मैडम ने तो वीडियो अपलोड कर दिया है, सुबह 9 बजे देखो या रात को 9 बजे या रात को 3 बजे उठ के देखो। नो, इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। हमें हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करके चलना चाहिए। सो दिस आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मैंने आज पढ़ा है इसको आप आज ही पढ़ो, आज ही लर्न कर लो, बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट चैप्टर में जो आप चीज़ पढ़ रहे हो वो आपको लास्ट तक काम आएगी। अब राधिका मैडम बोल रही हैं कि जो हम मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं वो लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम आएगी। कैसे आएगी? केस स्टडीज़, आपकी केस स्टडीज़ कॉम्प्रहेंसिव आएगी, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं आएगी। एक केस स्टडी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट सब कुछ आ सकता है। तो बी अलर्ट, बी अटेंटिव, बी फोकस्ड एंड बी डिसिप्लिन फॉर दिस ईयर फॉर योर स्टडीज। That's all for today. One thing which I forgot to tell you in the starting, the book which we are referring is NCERT syllabus, but most of we are purchasing refreshers. So most of the students are purchasing Poonam Gandhi, but I am teaching from RK Singla. Any of the book you can refer. Poonam Gandhi is really very good. Now they have included so many case studies, last year's case studies, etc. for your knowledge. And I am teaching from RK Singla. The only reason is that some topics which are not given in your Poonam Gandhi, I can cover it from the RK Singla. RK Singla is available in our library also. If you want, you can take it. Or 2-3 topics only are not there in your Poonam Gandhi, so which I can dictate you, or I can give you with the help of my book, or you can take it from me. So इसलिए that's all for today. Now this definition, meaning and characteristics learn by heart. After completing this chapter, I will give you one work. You have to prepare copy in which you have to make notes, and before coming to school आपकी कॉपी में ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए along with the case studies. So that's all for today.